جیسا کہ آپ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ ہم لوگوں کا یہاں آنا اور ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں ہے، کسی اپنی پہچان کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور جس جگہ پر ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاری کرنے والی یہ جگہ ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے آج بتایا کہ اس مسجد کے جو سابق امام مولانا مفتی غلام رسول صاحب تھے، انہوں نے 1996 کے اندر 80 کے اندر جو ہے اس جگہ کو اپنی جامع مسجد ساجد حق کروایا تھا، اور ان کی وفات جو ہے 1996 میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر رہ کر اور ان سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ ہماری اس مسجد کے امام رہے ہیں یا جن لوگوں نے معلم کے طور پر اس مسجد میں کام کیا ہے، سب لوگ اس کے گواہ ہیں۔ یہ جگہ الحمدللہ یہ جامعہ مسجد مینڈر کے ساتھ منسلک ہے اور تھی اور رہے گی۔ ہمارا نعرہ ہے، ہم کسی کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اپنا ذاتی مفاد کے بحث نکالنا نہیں چاہتے ہیں، چاہے کہ وہ پورے جموں کشمیر کا کوئی فرد ہو یا سیاسی فرد ہو یا کوئی لیڈر ہو۔ ہماری پیدائش بھی دین محمدی کی خاطر ہے اور ہماری موت بھی دین محمدی کی خاطر ہے۔ ہم سب نے پرامن طریقے سے اپنے حق کو حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ہر اعتبار سے، قانونی اعتبار سے بھی اور ہم ہر اعتبار سے اپنے اس حق کو لے کر رہیں گے۔ یہ ہماری زمین نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے نام پر وقف کی گئی ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر وقف کر دیا جائے وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ من جانب اللہ اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جس چیز کا الحاق ہو جائے، جس کو ان کے نام پر وقف کر دیا جائے، وہ اسی کی ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی کا ذاتی حق نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو پرامن طریقے سے اپنی اس آواز کو پہنچانا ہے اور پہنچا کر رہنا ہے اور اپنا حق کو حاصل کرنا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حضرات آج یہاں جس جگہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال سے غالباً 48 سال سے جامع مسجد کے ساتھ یہ جگہ منسلک ہے، 50 سال لگ بھگ ہونے والا ہے، اور یہ جگہ نہ مفتی صاحب کی ہے، نہ میری ہے، نہ کسی دوسرے کی ہے، نہ کسی کمیٹی والے کی ہے، نہ کسی لیڈر کی ہے، نہ کسی مولوی کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے۔ یہ ساری قوم کا سرمایہ ہے، یہ ساری قوم کی پراپرٹی ہے، یہ ساری آنے والی نسلوں کا سرمایہ ہے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دے کر اس جگہ کو جامع مسجد کے ساتھ منسلک کیا ہے، آج اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کو پورا پورا اجر و ثواب آج قبروں میں بھی مل رہا ہے۔ اور آج ہماری باری ہے، اگر ہم یہاں پر اس وقت اگر اس زمین پر زندہ ہیں تو اگر ہم اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر اپنے مکان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر اپنی پراپرٹی کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو یہ ساری قوم مسلم کا سرمایہ ہے، یہ ساری قوم مسلم کی پراپرٹی ہے۔ یہاں پر دل سے جو کوئی بات کرے گا، دل سے جو ہمدردی کرے گا، دل سے جو اس کی حمایت کرے گا، وہ کسی مولوی سے نہیں کوئی اجر لے گا، کسی بڑے یا چھوٹے
से अजर नहीं लेगा, उसका अजर मेरा अल्लाह देने वाला है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से ये पुरजोर गुजारिश है कि ये मेंढर की सरजमीन है, ये मेंढर की धरती है। माशाअल्लाह ये लोग पुरअमन भी हैं, लेकिन जब किसी मामले में निकल जाते हैं तो फिर ये हालात को बनाना भी जानते हैं, ये अपने हालात बिगड़े हुए को हाथ में लेना भी जानते हैं। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा, बिलखसूस यहाँ ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं है, ये जगह हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हमारी जितनी उम्र हो चुकी है इतनी उम्र इस जगह की जामे मस्जिद के साथ मुंसलिक है। इसलिए ये जगह अगर है तो ये अहले इस्लाम की जगह है, अहले इस्लाम के नाम पर ये जगह है, ये हमारी आने वाली नस्लों का सरमाया है। यहाँ या तो मस्जिद ही बन सकती है या मदरसा ही बन सकता है। उलमा मौजूद हैं, जो जगह मस्जिद के नाम लग जाए, जो जगह मदरसे के नाम लग जाए, उस 1 इंच जगह पे ज़ाती तौर पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ना आने वाली नस्लों में उस पर कोई काबज हो सकता है, ना इस बारे में कोई सोच सकता है। जो ये सोचेगा कि मैं मस्जिद की जगह हड़प करूं, मैं मदरसे की जगह जो है अपने नाम करूं, तो वो बर्बाद हो सकता है, नस्लें बर्बाद हो सकती हैं। अल्लाह का कानून बड़ा है, ये ज़मीन बहुत बड़ी है, हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम मस्जिद की जगह को कब्जा करें। इसलिए अगर जो कुछ ऐसा सुनने में आया है, हमने मुफ्ती साहब से भी सुना, दाएं बाएं से भी सुन रहे हैं कि अगर ज़ाती तौर पर अगर औकाफ़ इस्लामिया मुदाखलत कर रही है या कोई गवर्नमेंट का बंदा मुदाखलत कर रहा है, तो हम ये आगाह कर देना चाहते हैं, बड़े बाअदब तरीके से, बड़े पुरअमन तरीके से हम जो है ये आगाह कर देना चाहते हैं LG गवर्नमेंट साहब को भी और इस वक्त के मौजूदा CM साहब को भी और यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं कि ये सारी कौम को जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना इन लोगों की जिम्मेदारी है। किसी एक का आप तहफ़्फ़ुज़ ना करें, किसी को ज़ाती तौर पर आप किसी का अगर नहीं कर सकते, मगर ये हमारे सारे मुसलमानों का सरमाया है। हम ये गुजारिश करते हैं कि हम किसी किस्म की यहाँ जो है ज़ाती तौर मुदाखलत, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो, मेरा भाई हो सका या जो भी कोई हो, ज़ाती तौर पर इस पर कभी दखल देने की कोशिश ना करे। और मैं LG गवर्नमेंट साहब से, जनाब CM साहब से और यहाँ की इंतज़ामिया से भी मैं गुजारिश करूँगा, यहाँ के तहसीलदार साहब, यहाँ के SDM साहब और यहाँ के SDPO साहब, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये थोड़ी सी पब्लिक अभी नहीं, आवाज़ नहीं इतनी दी है, आ गई है, तो अगर हालात को पुरअमन रखना चाहते हैं, अगर मेंढर को पुरअमन तरीके से चलाना चाहते हैं, तो जो जगह जहाँ जिसकी है वो उसी के नाम रहने दिया जाए। और यहाँ पर ये जगह जामे मस्जिद के साथ मुंसलिक है, हम सारे लोग इसी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और इसी की हिफाजत के लिए और इसी का ताउन करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, आप सारे लोग जानते हो क्या ये मस्जिद के साथ ये जगह है या नहीं है? क्या इस जगह को ये मस्जिद और मदरसा ही बनना चाहिए? तमाम लोगों की आवाज़ है, लिहाजा बोलने वाले यहाँ मुफ्ती साहब व दीगर बहुत हज़रात हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर यहाँ दीगर जितने भी उलमा हज़रात यहाँ खड़े हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से कोई ये बात छपी छुपी नहीं है। आप सबको मालूम है कि ये दरसगाह 10 मरला जगह जो है, ये हज़रत किबला मुफ्ती गुलाम रसूल साहब ने 1980 में जो है DC वक्त से अलाट करवाई थी। वो किस मकसद के लिए करवाई थी? यहाँ एक दीनी दरसगाह के लिए जगह नहीं थी, चूँकि वहाँ मस्जिद के साथ बच्चों को वहाँ पढ़ने की जगह नहीं है। यहाँ पे 50-60 तालिब इल्म जो हैं वो ज़ेर तालीम है, दीनी तालीम भी और मरबजा तालीम भी जो है वो सीखते हैं। तो इस मकसद के लिए उन्होंने लाट करवाया था। अल्लाह तबारक व तआला को वो प्यारे हो गए। उसके बाद मुफ्ती अयूब साहब आए यहाँ, उन्होंने भी यहाँ क्या किया कि यहाँ बच्चों को आपके सामने पढ़ाते रहे। यहाँ उन्होंने यहाँ एक टीन के जो कमरे 2 बनाए थे, यहाँ बारक बनाई थी और यहाँ काफ़ी अर्सा तक वो यहाँ बच्चों को पढ़ाते रहे। दर्स व तदरीस का काम चलता रहा। उसके बाद ये है कि ये वक्तन फ़वक्तन जो है इस मदरसे को जब कमेटी ने तामीर करना चाहा तो बीच में मुदाखलत जो है वो औकाफ वालों ने मुदाखलत कर ली। उसमें हम समझते हैं कि हमारे औकाफ के जो मकामी लोग हैं जो इस औकाफ के अंदर थे, उनकी जो है उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लिहाजा ये है कि मैं आज इस मौके पर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आज तक अब
डेट जो है ये दरसगाह जामा मस्जिद मेंढर का जो है रिकॉर्ड आज तक जो है मुकम्मल बादस्तूर चला रहा है। हमने ये सुना कि यहाँ औकाफ ने जो है कोई नोटिफिकेशन की थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन जो है इन्होंने फेक नोटिफिकेशन करवाई और किसी वायरलेस मैसेज का हवाला दे के जो है इन्होंने औकाफ को अपना ये मदरसा ये जगह जो है ज़ाहिर करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जो है जब इन्होंने यहाँ दुकानों की तामीर के लिए काम शुरू करवाना था तो हाई कोर्ट में कमेटी जो है की तरफ से हमारे मुफ्ती साहब जो हैं वो गए, तो हाई कोर्ट के आगे जब वो उनका वकील गया, वकील ने ये किया कि उसने कहा जी हम वहाँ तामीर नहीं करेंगे, हम इसको कभी भी यहाँ कोई मदाखलत नहीं करेंगे, न तामीर करेंगे। तो उस पर कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया, उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया। अब ये है कि मैं ज़रा ये इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ, एलजी इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ, और आज की जो हमारी हुकूमत है, जो उमर अब्दुल्ला साहब, आपसे हमारी ये गुजारिश है कि एक 10 मरले का टुकड़ा जो है यहाँ बच्चों की तालीम के लिए ये मखसूस किया गया था, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मखसूस हुआ था। और जब गवर्नमेंट ने इसको किसी हमारे मुफ्ती साहब के नाम जो है वो कर दिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी हो हमारा, यहाँ का कोई बड़ा लीडर हो, यहाँ का कोई छोटा लीडर हो, यहाँ का कोई पीडीसी हो, यहाँ का कोई डीडीसी हो, अगर अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अगर ये अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो यहाँ इस जगह को लीज पे लेना चाहे या इसको अलाट करवाना चाहता है, तो हम इस बात की हम मजम्मत करते हैं। क्योंकि आज स्पेशल ऑफिसर जो है हमारे मेंढर के हैं, कैफी साहब हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि यहाँ मेंढर में हालात ऐसे हैं, हालात जो हैं यहाँ लैंड आर्डर का मसला बनेगा। लेकिन कभी भी आज तक जो है जामा मस्जिद मेंढर से वो चाहे कोरोना का दौर हो, चाहे वो लॉकडाउन का दौर हो, कभी भी ऐसी कोई जो है ऐसी बात नहीं वहाँ से उठी है। हमेशा जो है वहाँ से जामा मस्जिद मेंढर से जनाब मुफ्ती सुल्तान साहब ने हमेशा बात जो है वो अमन की बात की, शांति की बात की, इस्लाम के लिए वक्फ हुई है। इसमें जो है यहाँ बच्चे जो है ज़ेरे तालीम रहे, आज भी बच्चे जो हैं ज़ेरे तालीम होंगे। तो लिहाजा मैं जनाब SSP साहब से कहना चाहते हैं, LG इंतज़ामिया से कहना चाहते हैं, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर को कहना चाहते हैं, और हमारे इस इलाका के मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद राना साहब जो हैं उनको भी हम मतला करना चाहते हैं कि इन चीज़ों में यहाँ पे जो है रक्षा अंदराबी जो है उसने यहाँ चक्कर लगा के ये सारी चीज़ें जो है कम अज़ कम जो है आपको ये देखना चाहिए था। ये चीज़ें जो है अलाट करते वक्त या मुदाखलत करते वक्त देखना था। क्या आज आप बतौर एडमिनिस्ट्रेटर रियासत जम्मू और कश्मीर बन के जो है ये औकाफ की प्रॉपर्टी जो है, क्या आप औकाफ की प्रॉपर्टी को आपको बेचने का कोई हक नहीं, आपको जो है किसी के नाम अलाट करने का कोई हक नहीं। लेकिन ये है कि मैं आज इतनी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस मेंढर तहसील के जितने भी 3 तहसीलें हैं इनका ये मरकज़ है और तमाम मुसलमानों की जगह है, तमाम इंसानों की जगह है। बतौर सियासी लीडर हो, बतौर कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, वो मुसलमान तो है, वो कलमा पढ़ता है, वो नमाज पढ़ता है, उसको जो है दीन के इस मदरसे के साथ जो है उसको प्यार है, मोहब्बत है। लिहाजा इन सभी हजरात ने जो मुझसे कबल कहा है मैं इनकी तायद करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम कहना चाहते हैं यहाँ कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम मत को यहाँ क्रिएट करें। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारी आवाज़ जो है ये ऊपर तक जानी चाहिए, LG साहब तक जानी चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब तक जानी चाहिए, मरकज़ की हुकूमत तक जानी चाहिए। या हम मुतलबा करते हैं कि आप ऐसा करें कि हमारा ये हक जो है मत इसको गस्ब करें, हम नहीं होने देंगे। लिहाजा मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इसी पे मैं इत्तफाक करूँगा। शुक्रिया। हाइट में यहाँ हम खड़े हैं, हमारे बच्चे खड़े हैं, हमारी आने वाली नस्लें खड़ी रहेंगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे सबसे पहले इस बात का इल्म हुआ था कि किसी आदमी ने, किसी फ़र्द वाहिद ने सियासी तौर पर अपने असर रसूख चढ़ा के इसको अलाट करने की कोशिश की। मैंने सुल्तान साहब को उसी वक्त आगाह किया था। और आज हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें इस मदरसे की इस जगह पे दीन मोहम्मदी के नाम पे हम कुर्बान होने को तैयार हैं। और ये बावर करवाना चाहते हैं LG साहब को कि LG साहब आपके ऑफिस को कोई गुमराह करे
तो आपका भुगतना पड़ेगा। सीएम साहब के आप उसको कोई गुमराह करे, उसको भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ के हमारे मंत्री मोहतरम जावेद राना साहब की गोशगुजार करूँगा कि वो हमारी क़यादत करें, वो हमारी आवाज़ हैं। वो गवर्नर साहब से भी मिले, वो औकाफ की जितने भी कोई अजुमा हैं उनसे भी मिले। यहाँ जो औकाफ से मुंसलिक कुछ मुलाजिम है, हमारे पास उनकी फहरिस्त है, वो लोगों को ज़बरदस्ती साइन करवा रहे हैं। हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट्री है इसकी, ये एक फ़िल्म है। और जब ये फिल्म का पूरा अभी ट्रेलर है, जब पूरा मंजर सामने आएगा आप आवाम को पता चल जाएगा। मैं इस क्लिप के जरिए ज़रूर गुजारिश करूँगा पूरी सब डिवीज़न मैटर के आवाम से, मैं खित्ता पीर पंजाल के आवाम से कि अपने दीन की खातर ये इस जगह के लिए हम कुर्बानी देंगे। आप भी सामने आए, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को साथ लेकर यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया।